Okay, so we'll start with understanding of quadratic equations. So what are quadratic equations? We'll start from there. Any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as a quadratic equation, where a is not equal to 0, right? Now what happens if I take a as 0? अगर मान लो मैं यहाँ कह रहा हूँ, so it becomes 0, so power 2 goes to 0, so it becomes a linear equation, and therefore it no longer exists as a quadratic equation. So let us say we are having equation of the form x square minus 5x plus 6 is equal to 0. It's a quadratic equation. If you want to solve this quadratic equation, there are two methods of solving quadratic equation. One is a formula method and second is a splitting middle term method. So what is a middle term? Now if I say something like 5x square, 5x plus x square plus 6, is there any difference between this equation and this equation? लेकिन कोई डिफरेंस है? बेसिकली सेम इक्वेशन है. तो मिडिल टर्म क्या किसको बोलेंगे हम जब भी मिडिल बोलते हैं तो ये एज्यूम्ड है कि हाईएस्ट डिग्री पहले लिखेंगे, उससे कम डिग्री उसके बाद लिखेंगे, उससे कम डिग्री उसके बाद, तो हम ऑर्डर में लिखेंगे. उस रेफरेंस से हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. नहीं तो आप ये कहोगे सर इसको स्प्लिट करो, ये मिडिल में मैंने लिखा है, करो. ऐसा नहीं होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग इट एंड द स्टैंडर्ड प्रोसेस. मिडिल मतलब जो सिंगल डिग्री इक्वेशन है यहाँ पे उसको हम मिडिल वैल्यू बोलते हैं, राइट? सो इन दिस केस दिस इज द मिडिल वन. So how do you split? You have to split this number in such a way that the sum of these two numbers is -5 and the product of these two numbers is the product of the first and the last term. समझ में आ रहा है? तो product of the first and the last. तो हम इसको कैसे split कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal to 0. So minus 2x minus 3x becomes 5x. And minus 2x into 3x will become plus 6x square. So whenever we are able to split a number like this, we can always take x common and it will become x minus 2. And I can take minus 3 common and it becomes x minus 2. Out of these two, I can always take x minus 2 as common. So if I take x minus 2 as common, I am having x minus 3 is equal to 0. So इन दोनों का product 0 है, यानी या तो x minus 2 is equal to 0 है या x minus 3 is equal to 0 है. इसका मतलब x is equal to 2 है या x is equal to 3 है. So this is known as the solution of the quadratic equation. हम इसको किस नाम से जानते हैं? Solutions. इसको हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम इसको जीरोस के नाम से भी जानते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ रहा है? तो ये मेरे क्या है? सॉल्यूशन है या रूट्स हैं या जीरोस हैं. ये बात समझ में आ रही है? नाउ what does this really mean? मतलब कि x is equal to, इसका मतलब क्या है? When you put this value in this equation, LHS will become equal to RHS. In another words, if I were to plot a graph, let's say ये मेरा quadratic equation है और मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो ये जो ग्राफ कुछ बनेगा, मान ले ऐसा बनेगा, तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पे और 3 पे. That is a basic meaning. समझ में आ रहा है? Quadratic is a पैराबोलिक फंक्शन. एक पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला फंक्शन एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे काटेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा. यानी कि जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? y इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ, मतलब बहुत तरह से हो सकते हैं ना, वो तो स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया. y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर होता है, मतलब y is equal to 4x तो लाइन हो जाएगी. देखो ये है y is equal to x. अगर y is equal to 4x होगा तो it will lean towards y axis. This may be y is equal to 4x. ये है y is equal to 4x. पैराबोला y is equal to 4x स्क्वायर या तुम y is equal to 4ax, पता नहीं क्या बोल रहे हो, बट ठीक है.
दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोलिक फंक्शन। सो जिस एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट्स पे वो काटेगा वो उसका सोल्यूशन कहलाता है। आ रही बात समझ में? वैसे तो इसका मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा ये डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका मुंह कहाँ खुलेगा? ऊपर की तरफ। अगर उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा तो फंक्शन हमेशा हमें क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। ये मिनिमम वैल्यू है ग्राफ की। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे चल रहा है तो नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, यानी ये हमें क्या देगा? ये मैक्सिमा देगा। ऑफ कोर्स हम इसको पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक की हम डेफिनेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बाय वेरी डेफिनेशन वो चीज क्या है। वो एक पैराबोलिक फंक्शन है, मुंह ऊपर खुलेगा इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मुंह नीचे की तरफ खुलेगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। ऊपर की तरफ मुंह खुलने का मतलब आपको मिनिमा वैल्यू मिलती है, मुंह नीचे की तरफ खुलने का मतलब आपको मैक्सिमा वैल्यू मिलती है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक बात समझ में आती है बेसिक? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये होता है, कौन सा तरीका? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी मिडिल वाली टर्म को दो हिस्सों में बांटोगे सच दैट द सम इज इक्वल टू मिडिल टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। दैट इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आती है? Now, this is just one of the ways of handling this question. The other way of handling the same question is what we call as a formula method. What is a formula method? Formula method says if I am having a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, the roots मतलब इसी को बोलते हैं, can be given as so this will give me the roots. Now we understand what is the meaning of a, b and c. So if I am having x square minus 5x plus 6 is equal to 0, minus b becomes minus of minus 5 plus minus under root of minus 5 का whole square minus 4 into 1 into 6 divided by 2 times 1. So this becomes 5 plus minus under root of 25 minus 24 divided by 2. So this will become 5 plus minus 1 divided by 2. This 5 plus 1 by 2 and 5 minus 1 by 2. So this becomes 3, this becomes 2. That is the answer. So this is the formula method of solving a quadratic equation. तो roots क्या बनेंगे? minus b plus minus under root of b square minus 4. सारी बात समझ में? इस तरीके से फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अब इसका एक और यूटिलाइजेशन है, जो ये वैल्यू है, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका एक नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेट करने वाला। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है जिसकी वजह से हम उसको डिस्टिंग्विश, बाकियों से अलग कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये इस डिस्क्रिमिनेट किस सेंस में करता है? दिस वैल्यू अंडर रूट ऑफ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दिस वैल्यू विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या डिटरमाइन करेगा? मेरा नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करेगा। तो नेचर क्या, रूट्स का नेचर क्या होता है? नेचर मतलब उसकी वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि वो रियल है, रैशनल है, इमेजिनरी है, किस टाइप का उसका नेचर है, हम उसको हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स हम की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास जैसे ये था, अंडर रूट में क्या आ गया? 1 आ गया, जो t है, यानी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर अंडर रूट में पॉजिटिव आ गई तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल। अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो रूट क्या हो जाएगा? रियल। रियल मतलब असली रूट्स, क्योंकि अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? रियल रूट्स। रियल रूट्स। दूसरा, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो जैसे 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 होता तो भी परफेक्ट स्क्वायर होता, तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडर रूट खत्म।
अंडर रूट खत्म हो गया, यानी टोपीधारी नंबर तो नहीं है, यानी इरेशनल तो नहीं है, तो क्या होगा रूट्स? ठीक है, रियल और रैशनल। अब चूंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, हम क्या कह सकते हैं, रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, वी कैन से द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर मैं कहूं d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 तो है, तो रियल तो होगा ही होगा, इरैशनल होगा। और चूंकि इरैशनल है और डिस्टिंक्ट भी होगा, चूंकि इरैशनल है, इट विल एग्जिस्ट एज कॉन्जुगेट पेयर। मतलब इरैशनल रूट्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। मतलब क्या है इस बात का? मान लेते हैं मैंने आपको एक इक्वेशन दी, मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि 22x² माइनस 847x प्लस 543 इज इक्वल टू 0। वन ऑफ द रूट इज 23 प्लस रूट 2079। इस क्वेश्चन का एक रूट ये है अल्फा, तो बीटा रूट क्या होगा? 23 माइनस रूट 79। आ रही बात समझ में? अगर एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, क्योंकि वो रूट, नेचर ऑफ रूट कैसा है? आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो नेचर है कैसा? अगर वो इरेशनल है तो वो कॉन्जुगेट पेयर ही होगा। ये इसका एप्लीकेशन, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी अंडर रूट में 0 आ गया, एक बात तो होगा, वो रियल होगा एंड इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, रियल होगा एंड इक्वल। द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन कि 22x², मान लेते हैं x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 7 नहीं है, kx मान लेते हैं। What should be the value of k such that the roots are equal? क्या क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? What should be the value of k such that the roots are equal? अगर इक्वल रूट है तो इसका क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी कि b² माइनस 4ac शुड बी 0, यानी k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू माइनस 32। इसको हम प्लस कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, तो 32, तो k की वैल्यू बन जाएगी 16 पूजा, तो 4 रूट, एक बार प्लस एक बार, दो रूट्स आ जाएंगे, दो पॉसिबल। तो रूट्स आर रियल एंड, रूट्स आर रियल एंड। देखिए, पूछा के की ऐसी क्या वैल्यू हो, के की ऐसी क्या वैल्यू हो, नहीं हाँ हो एक प्लस माइनस, के की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये रूट्स इक्वल हो जाएं, तो के की ये वैल्यू हो सकती है। तीसरा प्रॉपर्टी है
अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, त्रिधारी नंबर 0 से कम हो गया तो क्या होगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। और क्या होगा, डिस्टिंक्ट। और क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर। So the roots are imaginary, distinct and conjugate। once again क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस एक रूट मान लेते हैं 23 प्लस 6 आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, अच्छा एक रूट है मान लेते हैं 6 आयोटा माइनस 23, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 आयोटा प्लस 23, ये गलत है। हमेशा हम इसमें पहले ये वाला नंबर लिखते हैं, हमेशा हम पहले रैशनल लिखते हैं। अब बीच में साइन चेंज करना है, माइनस 23 माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट पेयर है। समझ में आ रहा है, पहले रैशनल नंबर लिखेंगे फिर इरेशनल नंबर लिखेंगे, उसके बाद साइन चेंज करेंगे। ऐसे ही नहीं कहीं पर भी कुछ भी दिया साइन चेंज कर लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वही वाली बात है सर, मिडिल में एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसको एक ऑर्डर में लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर लिखना है फिर bx लिखना है, उसके बाद में। उसी तरीके से जब हम बोलते हैं ना साइन बीच में चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन कब होगा, जब पहले रियल नंबर आएगा फिर इमेजिनरी नंबर आएगा, उसके बाद साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, किसके बेसिस पे हो गया ये, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। एंड उस चीज को ध्यान में रखोगे तो रट्टा कम मारना पड़ेगा, लॉजिक से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आ रही बात समझ में, एक चीज तो हमें ये आनी चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इस पे नेचर ऑफ रूट्स पे बिना सॉल्व किए आंसर निकालना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन इस पे बनता है वो बनता है जो सॉल्विंग अभी हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था, अभी हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x में से x माइनस 2 कर दिया, माइनस 3 में से x माइनस 2 कर दिया। इन दोनों में से अगर अपन x माइनस 2 निकाल लेते हैं और यहाँ x माइनस 3 निकाल लेते हैं तो 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 2 और x इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या बनेंगे, मान लेते हैं अल्फा बीटा। मान लो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स ये थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स ये थे, तो वो इक्वेशन कैसे क्या है, मतलब अगर इक्वेशन है तो हम सॉल्व करके रूट्स निकाल पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रूट्स हमें पता है तो क्या हम इक्वेशन बना पाएंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे। x 2 और 3 आंसर है मेरा, ये आंसर कैसे आया होगा, आखिरी में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी अपन x इज इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 किया होगा। लेकिन इसके पहले वाला स्टेप शायद ऐसा रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 रहा होगा, तभी अपन ने इसमें से स्प्लिट किया होगा और ये बनाया होगा। और ये इसके पहले कुछ ऐसा रहा होगा, यही रहा होगा, समझ में आ रहा है। और ये 6 कैसे आया होगा, जब हमने ये x2 प्लस 3 किया होगा तो बेसिकली ये 2 इंटू 3 रहा होगा। आ रही बात समझ में, या फिर हम इस सबको ना करके हमारा जो रहा होगा वो ये रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये इक्वेशन बनी होगी, समझ में आया। लास्ट स्टेप रिवर्स करते करते आंसर आ गया। अब मान लेते हैं मैंने कहा मेरे रूट्स अल्फा बीटा है, तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 रहा होगा, x इज इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा। ये कैसे रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 रहा होगा। ये कैसा रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा रहा होगा।
व्हाट इज अल्फा बीटा? तो कहना से ये x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट है ये, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बताता हूँ। मान लो 2 + 3 था रूट एंड 2 × 3 था। अगर हमें रूट्स दिए हैं तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बोलो सब लोग, इक्वेशन ऑफ द रूट्स आर, फिर से बोलो, फिर से बोलो, यहां तक बात समझ में आती? नाउ इफ यू सी, ये मैंने अल्फा बीटा रूट्स इस इक्वेशन के माने थे, और ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ गई? इस फॉर्मेट में, यानी ये इक्वेशन और ए एक्स स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर ये सेम है तो कहना इसे ए कैन बी रिटन एज 1, तो b कैन बी रिटन एज माइनस एस एंड p कैन बी रिटन एज c। नो, इट कैन नॉट बी रिटन। अगर आपको याद हो लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था सॉल्व करने को, x + 2y इज इक्वल टू 19, 19x + 38y इज इक्वल टू 361, याद है? अगर ग्राफ बनाओगे तो दोनों सेम इक्वेशन है, लेकिन इसको 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब सेम आ जाएगा। अगर दोनों चूंकि इक्वेशन सेम है तो मैं कह सकता हूं कि 19 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अगर मुझे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो एक कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 19 है, तो अगर मैं 19 से डिवाइड कर दूं ना तो ये वाला तो बन जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे ये 1 आएगा बाकी सब भी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक कोफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पे क्या है, तो मैं अगर a से डिवाइड कर दूं तो ये कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होना चाहिए? x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, चूंकि ये कोफिशिएंट सेम है, बचे हुए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? b बाई ए, और यहाँ क्या है? माइनस एस, तो ये सेम होना चाहिए। और यहाँ क्या है? c बाई ए, यहाँ क्या है? ये माइनस कर दूं, ये प्लस कर दूं, चलेगा। व्हाट इज s? सम ऑफ द रूट्स। सो कैन आई से सम ऑफ रूट्स is equal to minus b by a and the product of the roots ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूं, अगर आपको ध्यान हो, हमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या थे? 2 और 3। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो क्या आना चाहिए फॉर्मूला? माइनस b बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा? 5, जो कि 5 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा? c बाई ए, c कितना है? 6, 1 और 6 क्या? 20। समझ में आ रहा है? तो सब लोग बोलो, सम ऑफ द रूट इज गिवन एज माइनस b बाई ए। फिर से बोलो, फिर से बोलो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट
इज गिवन एज सी बाई ए। बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, याद रहेगा। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में फॉर्मूला मेथड। दूसरा हमें क्या समझ में आ गया, नेचर ऑफ द रूट्स। फिर हमें क्या समझ में आया कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालने हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब मान लो क्वेश्चन क्या आ गया, मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं 2, 3। मैंने कहा वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स हैं -2 -3। जनरल फॉर्म में बताता हूं। मान लो मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट बनेंगे माइनस अल्फा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। अगर ये अल्फा बीटा है तो ये कह सकता है मुझे चाहिए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो ये बोल सकता है मुझे 2 अल्फा 2 बीटा वाले रूट चाहिए, ये भी हो सकता है। अगर इसके अल्फा बीटा है तो मुझे एक रूट चाहिए अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं 2 3 और एक ये भी इसके रूट अल्फा बीटा है तो मुझे ऐसा रूट बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, या इसके रूट अल्फा बीटा है तो ऐसा बताओ जिसका अल्फा क्यूब हो बीटा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन पहला वाला करके दिखाता हूं। हमें पता है मेरी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके रूट है अल्फा एंड बीटा। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट है माइनस अल्फा। तो अगर हम इसको भूल जाएं तो इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यही, अगर मुझे ये रूट्स चाहिए, ये रूट्स चाहिए, तो ये इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यही बनेगा। बट व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? क्योंकि ये तो गिवन है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? ए, तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बनेगा ए एक्स स्क्वायर। यानी अगर मेरा इक्वेशन ये होता और माइनस बनाना पड़ता तो चेंज क्या आ रहा है? बीच में जो माइनस है उसको अगर मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं। समझ में आ रहा है? एक तो ये हो गया। ऐसे ही मैं चाहता हूं एक बार सॉल्व करो, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप ये वाला मुझे बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। करके दिखाओ। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही आपको ये वाला करना है। क्या हो रहा है? क्या चेंज करना है? इक्वेशन क्या बनेगी? कैसे सॉल्व करोगे? रूट्स कैसे बनाओगे? इक्वेशन कैसे बनेगी पहले बताओ।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस, यही सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 बाय, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, ये बनेगा सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय डिवाइड बाय अल्फा प्लस, ए से कट गया, एलसीएम बनेगा सी, यही बनेगा इक्वेशन। क्या हुआ देखो, इसका कोफिशिएंट यहाँ आ गया, इसका कोफिशिएंट यहाँ आ गया, यानी अगर मेरा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, अगर मुझे 1/2 1/3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 को यहाँ लगना पड़ेगा, इसको यहाँ, तो बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसके रूट बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और करके दिखाओ मुझे, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, आपको बताना है जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब ऑब्वियसली हम इसको, एक हमारे पास एक शॉर्टकट है इसको करने का, वो भी हम कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, जैसे हमें एक तरीका है कि वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर के कर लो, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो x का, x यानी रूट्स, x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, अल्फा आ रही है, लेकिन मुझे नया x चाहिए, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x/2 होनी चाहिए, यानी x की जगह अपन x/2 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बस a इंटू x/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लेते हैं, a x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस bx 2bx अपॉन 4 ऐसे कर लेते हैं, प्लस 4c अपॉन 4 कर लेते हैं इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0, यही निकाला होगा आपने, देखो कहाँ से, शॉर्टकट। मान लो हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और मेरे रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब मुझे रूट चाहिए 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा चाहिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो आएगी, मतलब मान लो अपन ने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, रूट से आएंगे 2 और 3, 2 क्या है, x की वैल्यू भी तो 2 है और x की वैल्यू 3 है, तो अगर मेरे रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा क्या है, x की वैल्यू ही तो है अल्फा, समझ में आ रहा है? तो वो मैंने लिखा है x की वैल्यू अल्फा है, या बीटा भी लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा लिखा है मैंने। अगर x की वैल्यू अल्फा है इस सारे केस में, लेकिन हमें नया रूट चाहिए, उसका उसमें क्या चाहिए अपने, तो हमें चाहिए नया x चाहिए होगा, उसका नया रूट चाहिए होगा,
लेकिन हमें चूंकि हमें ओरिजिनल अल्फा है तो हम अल्फा की टर्म्स में लिखेंगे। अल्फा लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब x की जगह x/2 रखना है, बस आंसर आ जाएगा। एक और करता हूं, रुको, जो पहले किया है, x² माइनस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है मान लो। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, हमें रूट चाहिए माइनस अल्फा माइनस बीटा। x की वैल्यू अल्फा है, हमें क्या चाहिए, नया x क्या होना चाहिए, लेकिन अल्फा की टर्म्स में लिखने के लिए ये माइनस कर दूं, माइनस माइनस दोनों तरफ, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब x की जगह अपने को क्या रखना है, माइनस एक्स। रख के दिखाऊं, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b, ठीक है, तो ये बन जाएगा ax² माइनस bx प्लस c। अगर आपको देखो माइनस वाला जब अपन ने किया था ये रूट आया था, आ रही बात समझ। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे रूट है अल्फा बीटा, हमें चाहिए 1/अल्फा 1/बीटा। ये भी सॉल्व किया था, तो हम क्या करें, x की वैल्यू अल्फा है तो हमें तो 1/अल्फा चाहिए, तो 1/अल्फा के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये नया x बनेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, 1/x यही बनेगी। यानी x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1/x, तो ये बनेगा a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इज इक्वल टू, यही बनेगा a/x² प्लस bx अपॉन x², ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम कौन निकाले, मैं समझा रहा हूँ बस। c इसको cx² अपॉन x² कर दूं ऊपर नीचे, ताकि एलसीएम x² आ गया, a प्लस bx प्लस cx² इज इक्वल टू 0 बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया, cx² प्लस bx प्लस c। इंटरचेंज ही तो करना था, यही सिखाया था मैंने। इस टाइप से कुछ भी हो, मान लो आपको, मान लेते हैं हमारा रूट ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके रूट अल्फा बीटा है। आपको मान लेते हैं 3 अल्फा 3 बीटा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x/3, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x/3। अच्छा मान लो आपको अल्फा/3 और बीटा/3 करना होता, तो x की जगह क्या लिखना पड़ता, 3x। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। सारी बात समझ में, यही सारी चीजें इसने आपको समझाई हैं। किताबें हैं सभी के पास, मैं चाहता हूं एक बार पहले 2 पेज को आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा समझाऊंगा। नाउ ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हाँ मतलब कई बार ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए जहां पे हम इस नॉलेज को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मान लो हमें सम और प्रोडक्ट पता लग गया, ऑप्शंस में हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइन देख देख के हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कह रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं जो मेरी एक्सप्रेशन थी x² माइनस 5x प्लस 6। अगर ये पूछे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ऑब्वियसली इसका मैक्सिमा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आंसर बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो 1 माइनस 5 प्लस 6, 2 पुट करेंगे और ज्यादा, 3 पुट, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसका एक मिनिमा आएगा, इसकी एक मिनिमम वैल्यू आएगी हमेशा। इसको हम एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूँ y भी बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3। मुझे इस एक्सप्रेशन की या तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए। टेक्निकली तो हम देख के बता सकते हैं, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका हमेशा हम क्या निकालेंगे, मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इसका सिर्फ लोएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा दोनों तरफ, इसलिए इसका क्या निकलेगा, मिनिमम। अब वो मिनिमा कैसे निकलेगा, उसके 2-3 तरीके करने, 3 मेथड्स हैं करने के। एक मेथड तो जो हम 11th 12th में डिफरेंशिएशन यूज करके करते हैं, दूसरा मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा मेथड मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा, ठीक। मैं एक बार ये तीनों समझा देता हूं ताकि जो आपको ठीक लगे हम उस पर वर्कआउट कर सकें। तो जो हम 11th 12th में पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि ये मेरा फंक्शन है
हम इसको dy बाई dx निकालते थे, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और बनेगा माइनस। फिर हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं ताकि x की वैल्यू मिलेगी मेरे को 5/2। ये x की वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है x की जो हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो इस एक्सप्रेशन यानी y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कब मिलेगी? जब x की वैल्यू अपन क्या डालेंगे? 5/2। ये बनेगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, यही बनेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4, 25 माइनस 50 प्लस 24, तो ये बन जाएगा मेरा -1/4। यानी इस एक्सप्रेशन की x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा -4 आएगा। आप x को चाहे -1,00,000 डाल दो, -10 लाख डाल दो, -1/4 से कम इसका आंसर नहीं आ सकता। नो मैटर विच x आप कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर -1/4 से ज्यादा आएगा। -1/4 is the smallest possible value which you will get. At which point will you get? When you put x as 2.5। जब हम x की वैल्यू 2.5 यानी 5/2 पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा -1/4 आएगा। So -1/4 is the smallest value that you will get for this expression. And how do you get this? By substituting 5/2 there. हाँ, कौन सा कैसे लिखा? वो 2 साल की पढ़ाई है, अभी 1.5 साल लगता है उसको बताने में। ना कुछ नहीं, कुछ मैं बताता हूँ। देखो, आपको वैल्यू याद करनी, जैसे एक फंक्शन x की पावर n है, मान लो उसका डिफरेंशियल होता है n। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू है x की पावर n, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1, यानी मान लेते हैं x क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ऐसे मान लेते हैं 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। मान लो log x का, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये याद करना पड़ता है। इसी का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर क्या बनना चाहिए? x का क्यूब बनना चाहिए, क्योंकि x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा। ये इंटीग्रेशन होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। हाँ, ये पूरा कैलकुलस 11वीं 12वीं में यही पढ़ाते हैं। 50% सिलेबस आपका ये है जो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर बता दो थोड़ा सा। ठीक है, तो हाँ छोड़, जिसने पढ़ा हुआ है सिर्फ ये उसी के लिए। हाँ बता रहा हूँ मैं, तो 3 मेथड बताऊंगा, तो मैं टेंशन नहीं ले रहे हो। तो ये डिफरेंशिएशन है। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन में अगर आपको ये पता करना है ये मैक्सिमा है मिनिमा है तो उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। dy/2/dx² करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2। तो प्लस, चूंकि 2 है, 2 यानी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आता है तो हमें क्या मिलता है? मिनिमा। और अगर नेगेटिव आता है तो हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। ये ध्यान रखना है बस। क्वाड्रेटिक की बात, उल्टा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है, मान लो हमारे पास ये y किसी भी फंक्शन का एक ही चीज निकलता है। अब और हाई लेवल पे जाओगे तो उसको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा होते हैं। हाँ बस पूछेंगे नहीं, ठीक है। मान लो ये एक्सप्रेशन है, अपने को क्या चाहिए? अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मेरे पास ax² प्लस b² a² + b² + 2ab की फॉर्मेट आ जाए तो मैं इसको a + b का होल स्क्वायर कर सकता हूं। अब मुझे इसको बनाना है तो x² तो मैं इसको a मान के इसको होल स्क्वायर कर दूं। 2ab, तो 2ab सिर्फ मैं इसको बना सकता हूं, इसको तो नहीं बना सकता क्योंकि a की वैल्यू मैंने x मान रखी है। तो मान लो मेरे को -2 तो चाहिए,
लेकिन मेरे पास 2 तो अपने मन से तो लिख नहीं सकता, तो 1/2 लिखना पड़ेगा, और x की वैल्यू तो है ही मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे 5 है और x है, समझ में आ रहा है, +6। अब इसका मतलब ये, इसको मैं x² माइनस 2a का मतलब x, ये वाला x मान लेता हूं, इंटू b का मतलब 5/2 मानना पड़ेगा मुझे, a² माइनस 2ab है ना। अब चूंकि मुझे फॉर्मूले के लिए b² चाहिए, तो मैं इसको एक 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दूं और एक 5/2 का स्क्वायर माइनस कर दूं, बात तो बराबर ही है, +6। ये समझ में आ रहा है ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूं? ऐसा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये वाला जो टर्म एक्सप्रेशन है, इट इज लुकिंग लाइक x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या बच गया मेरे पास, 6 माइनस 25/4, ये बचेगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ओवरऑल क्या बनेगा, माइनस, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला a² माइनस 2ab प्लस b² इज a माइनस b का होल स्क्वायर, यही तो होता है। कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर होएगी तो नेगेटिव तो नहीं आएगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2 भी दो सकते, 1/4 भी दो सकती है। किसी भी नंबर की पावर 2 लिखना है और हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या हो सकती है, 0, 0 से कम तो नहीं हो सकती। अब मान लो आपने कहा कि इसको कम करना है, तो आपने x को -1/4 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल माइनस रहेगा, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर को मिनिमाइज करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0 कब होगा, जब x की क्या वैल्यू होगी, यही अपन ने यहाँ डिराइव करके निकाली थी, जब x की वैल्यू 5/2 होगी तभी ये 0 बनेगा। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 रखना पड़ेगा, तो भी मेरे पास कितना बच गया, -1/4, जो कि मेरा आंसर है, जो कि हमने यहां पर भी निकाला था, ठीक है, should not be problem. So when x is equal to 5/2, at that point of time the function will give you minimum value which is -1/4. ये पर ये वाला, ये एक्स्ट्रा, ये बच नहीं गया था ऊपर, हाँ। अब मान लेते हैं इसमें भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये करो, तीसरा मेथड मान लेते हैं ax² + bx + c है। आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी क्वेश्चन में देगा ना वही निकलेगा, वो निकलेगा -b/2a पे, बस ये याद कर लो। 2a पे या तो मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। जैसे मेरी इक्वेशन है x² - 5x + 6 है ना, अब मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, -b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 1। हाँ तो ये आ गया 5/2 आ गया, और 5/2 इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। अब ये -5 ये b/2a कहाँ से आया, एक्चुअली डेरिवेटिव से आया है, बस इतना याद, कुछ नहीं और कुछ नहीं, भूल जाओ। पर अगर आपको सीधा 5/2 का आंसर करना है, वो भी वैसे तो ये बेटर मेथड है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, ये वैल्यू पे मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो अपन यहाँ इसको डाल के डिराइव भी कर सकते हैं, a - b/2 के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a + c, यही बनेगा। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये बनेगा ab² 4a² - b² 2a + c, तो a से a कट जाएगा तो 4a एलसीएम ले लेंगे, तो बनेगा b² - 2b² + 4ac, तो ये बन जाएगा 4ac - b² / 4a। दिस इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये डायरेक्ट आंसर है। ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मिलेगा या तो ये निकाल के उसमें डाल दो, तो आंसर, डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका ये, 4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6 - b² बनेगा -5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो 24 - 25/4 विच इज -1/4, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको क्या याद रखना है, किस पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा, -b/2a पे।
इस पे मिलेगा -b/2a। था ना बढ़िया। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। बोलिए, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अगर हमें इसके ऊपर लेवल का आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d = 0। इसके कितने रूट बनेंगे? 3। मान लो उनके रूट बनते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर मुझे इसका सम निकालना है ना, तो वो बनेगा -b/a, यानी ये कोफिशिएंट बाई ये। इसके दो रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा प्लस c/a। और तीनों रूट बिल्कुल हमेशा यही लगेगा जो लिखा है। ये 3rd डिग्री इक्वेशन है। अभी आपको पैटर्न समझ में आएगा। मान लो 4th डिग्री इक्वेशन होता है ax⁴ bx³ cx² dx + e मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके कितने रूट्स होंगे? अगर मैं चारों रूट ऐड करूं, अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा, तो ये क्या बनेगा? -b/a। यानी कि नीचे तो आएगा जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसका डिनोमिनेटर। ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलेगा। अभी क्या है? सिंगल रूट टेकन एट ए टाइम, सिंगल रूट टेकन एट ए टाइम। इफ यू टेक 2 रूट्स एट ए टाइम, इफ यू टेक 2 रूट्स क्या क्या बनेंगे? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, यही बनेगा। इसका रूट क्या बनेगा? प्लस, माइनस था तो प्लस, अब c/, यानी इसको छोड़ के नेक्स्ट वाला। अब इसके बाद कितने रूट्स ले सकते हैं अपन? 3, कोई भी 3। अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, क्या बनेगा? -b/। अगर चारों रूट्स ले लेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या बनेगा? प्लस। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व करने होते हैं तो ये वाला एक यूजफुल होता है और ये वाला यूजफुल होता है। इन दोनों को यूज करके जनरली आंसर आता है। पहले वाला सम ऑफ द रूट्स यानी नेक्स्ट कोफिशिएंट बाय फर्स्ट वाला, प्रोडक्ट यानी कांस्टेंट बाय फर्स्ट वाला। लेकिन दिक्कत ये आएगी, आपको ये नहीं समझ में आएगा प्लस लिखना है या माइनस लिखना है ना। कंफ्यूजन यहाँ है, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। अब आप ये सोचो, अगर 4 रूट हैं तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। ऑड नंबर ऑफ रूट्स लेंगे, ऑड नंबर मतलब 3 रूट्स लिए ना, तो नेगेटिव आ रहा है। 4 रूट्स लिए तो पॉजिटिव आ रहा है। 2 रूट लिए तो पॉजिटिव आ रहा है। एक रूट लिया नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 रूट यानी ऑड नंबर, तो माइनस आएगा उसके आगे। 2 रूट यानी पॉजिटिव आएगा। एक रूट यानी नेगेटिव आएगा। आ रही बात समझ में? मान लो मैंने 5th डिग्री इक्वेशन लिखा, ax⁵ bx⁴ cx³ dx² ex + f = 0। आपके रूट्स आ गए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा। कितना आंसर आएगा? माइनस, समझ में आ रहा है? -b/, यानी दिस बाय दिस। क्योंकि 1 रूट है तो क्या लगेगा? टेक्निकली स्पीकिंग में बताऊं क्या होता है एक्चुअली, तो क्या ही होता है यहाँ पे ना, -1 की पावर n होता है। कहीं और डिटेल में पढ़ाएगा ना, तो -1 की पावर n यानी नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट ए टाइम। अगर 1 रूट लेंगे तो पावर 1 आएगा, तो माइनस हो जाएगा। अगर 2 रूट लेंगे तो यहाँ पावर 2 आएगा, तो पॉजिटिव। 3 रूट लेंगे तो पावर 3 आएगा, नेगेटिव। इसलिए ऑल्टरनेटिवली चलता है। अब 2 रूट लेंगे इसके, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा
प्लस अल्फा ओमेगा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा डेल्टा प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। कितना बनेगा? प्लस। ऐसे 3 रूट लोगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा ऐसे चलेगा। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस बी बाई। जब 4 रूट लोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा ओमेगा ऐसे लोगे तो क्या बनेगा? प्लस। अच्छा, 5 रूट लोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस कांस्टेंट आएगा एफ बाई ए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 6th डिग्री इक्वेशन है तो 6 रूट्स होंगे, तो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 6 का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस लिखेंगे या माइनस? प्लस। और क्या लिखेंगे? कांस्टेंट वैल्यू, आखिरी वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली वैल्यू। और अगर सिंगल सिंगल रूट लेंगे तो सेकंड वैल्यू बाय फर्स्ट वैल्यू, लेकिन रूट आगे क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि 1 रूट ले। जनरली 1 रूट और ऑल रूट्स, इन्हीं दोनों से कॉम्बिनेशन से हमें आंसर निकलने को मिलता है। और जनरली ये निकलता है ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व करके, वैसे नहीं निकलता है। यहां तक बात समझ में आती है एक बार के लिए? ठीक है, ठीक है। इसको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको एक रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम समझा देता हूँ। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, और फिर डिवीजन दिखाता हूँ, फिर उसको यूज करेंगे यहाँ पे। देखो, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन and when you divide it by x minus a, so remainder can be obtained as f of a, and if f of a is equal to 0, then x minus a is a factor. क्या मतलब है सारी बातों का? इस सारी बातों का मतलब है, मान लो x माइनस f of x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक, और हमें इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो कैसे करते हैं हम डिवाइड? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसे करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। फिर माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे, माइनस 2x। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 3x प्लस 6। फिर यहाँ क्या करूँगा? माइनस 3, तो माइनस 3x प्लस 6। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब है x माइनस 3 इज अ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, चूंकि किसी सिंस x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ में आ रहा है? जो नंबर किसी को डिवाइड कर सके उसको फैक्टर बोलते हैं। अब रिमाइंडर कैसे निकालते? कोई जरूरी नहीं है सब करना। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम f ऑफ 2 निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? f ऑफ 2, इसका मतलब x की जगह क्या पुट करना है? 2। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये बनेगा 4 माइनस 10 प्लस 6। रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर कुछ आता तो वो रिमाइंडर हो जाता है। इसको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। सारी बात समझ में? अब मान लेते हैं ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बार डिस्कार्टेज रूल पढ़ा देता हूं और फिर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसके पहले मैं आपको करता हूं डिस्कार्टेज रूल। डिस्कार्टेज रूल क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन ऐसा f ऑफ x, यार इक्वेशन समझ लो, x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब
प्लस 6x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 24। कितने इक्वेशंस होंगे, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे? अच्छा, कितने सॉल्यूशंस होंगे? 5। अब ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल, लेकिन हमें इस रूल से ये पता लग सकता है कि इसके कितने पॉजिटिव रूट्स हैं और कितने नेगेटिव, मतलब कितने पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स या कितने पॉसिबल नेगेटिव। इतना ये गारंटी नहीं है कि इतनी पॉजिटिव इतनी नेगेटिव, एक बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतने पॉजिटिव होंगे इतने नेगेटिव होंगे, इस टाइप से बता सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आप देखो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव 1 चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव 2nd चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव 3rd चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव 4th चेंज। तो कितने चेंजेस हैं? 4 चेंजेस हैं। समझ में आ रहा है कितने चेंजेस हैं? 4। तो इसके जो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स है ना वो कितने हो सकते हैं? 4। ये मैक्स है। कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं? 4। अगर ये मैक्सिमम 4 है तो इससे कम भी हो सकते हैं। तो इससे कम क्या क्या हो सकते हैं? या तो 3 या 2 या 1 या 0, लेकिन 3 नहीं हो सकते। हमेशा ये दो के मूवमेंट में चलेगा, या तो 2 पॉजिटिव होंगे या 0, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बस। ये किसी भी जितने भी पॉजिटिव रूट्स आएंगे ना, अगर मान लो मैंने कहा मैक्सिमम 5 पॉजिटिव आए तो इसका मतलब 5 से कम भी हो सकते हैं। तो 5 से कम कितने हो सकते हैं? या तो 3 रूट होगा और या 1 रूट होगा, या तो 5 रूट पॉजिटिव होंगे या 3 रूट पॉजिटिव होगा या 1। 2 के डिफरेंस में आएगा। वो क्यों आएगा भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। मान लेते हैं मैंने कहा 1 ही मैक्सिमम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली 1 रूट पॉजिटिव है, क्योंकि मैक्सिमम भी वही होगा मिनिमम भी वही होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपने कहा 6 मैक्सिमम पॉजिटिव है तो या तो 6 पॉजिटिव होगा या 4 या 2 या 0। अगर 7 है तो या तो 7 होगा या 5 या 3 या 2 या। समझ में आ रहा है? हाँ 1 है, ठीक है। तो जो भी हमारे मैक्सिमम पॉजिटिव रूट होंगे वो मैक्सिमम, तो उससे जो कम होगा वो 2 का डिफरेंस होगा। वो कैसे पता चलेगा? सिंपली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। जैसे कि यहां से पॉजिटिव था ना, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव 1 चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव 3 चेंज एंड नेगेटिव से पॉजिटिव 4 चेंज। तो मैक्सिमम कितने पॉजिटिव चेंज हुए? 4। यानी इसके मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे? 4। क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यानी कम भी होंगे। वो कम कितने होंगे? 2 और 0। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम नेगेटिव। वो कैसे पता चले? ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। वो क्या बनेगा? माइनस एक्स की पावर 5, ये बन जाएगा प्लस 3x क्यूब, इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस। ये बात समझ में आ रही है? माइनस एक्स कितनी बार चेंज हो रहा है? 1। ठीक है, कितनी बार चेंज हो रहा है? 1। इसका मतलब ये बात तो गारंटीड है, एक ही नेगेटिव रूट है। अगर 3 होता तो 3 और 1, अगर 4 ऐसा आ जाता तो 4, 2 और 0। ये बात समझ में आ रही? अब इस इक्वेशन के कितने रूट्स बनेंगे? टोटल 5। एक पॉसिबिलिटी है कि 4 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, काम खत्म हो गया। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी 4 पॉजिटिव होंगे अगर हैं तो 1 नेगेटिव तो है ही। कितने रूट हो गए? 3। तो बच गए जो 2 रूट, वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। अब आपको ध्यान होगा मैंने कहा था इमेजिनरी रूट्स हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि 2 यहां पे हमेशा 2 या 4 आएगा तो यहां का जो चेंज होगा वो हमेशा 2 में ही होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों 2 में चेंज हुआ है? क्योंकि अगर 1 में चेंज हुआ तो एक इमेजिनरी रूट बनेगा। अब एक इमेजिनरी रूट तो हो नहीं सकता, इमेजिनरी रूट हमेशा 2 होंगे। तो जो भी चेंज होगा वो कितने में होगा? 2 में होगा। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर 0 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव तो कंफर्म है, तो इमेजिनरी कितने होंगे? 4। यानी कि डिस्कार्टेज रूल से हम ये पता कर सकते हैं इस इक्वेशन के या तो 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 0 इमेजिनरी,
या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, या 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 4 इमेजिनरी। यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता इसका। ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है किससे? डिस्कार्टेज से। आ रही बात समझ में यहां तक? ओके चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द रूट्स x क्यूब -7x + 6 = 0। इसके इस डिस्कार्टेज रूल करके क्या बता सकते हो? कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव और कितने इमेजिनरी? बताओ मैक्सिमम पॉजिटिव कितने हैं इसमें? पॉजिटिव से नेगेटिव 1 चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 चेंज, तो मैक्सिमम पॉजिटिव कितने हैं? 2, या तो 2 या 0। अब नेगेटिव कैसे निकालोगे? x की जगह माइनस, ये बनेगा -x³ + 7x। कितनी बार साइन चेंज हो रहा है? एक बार। तो 3 रूट बनेंगे, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इमेजिनरी कितने हुए? 0। 0 पॉजिटिव ये कितना होगा? नेगेटिव। 1 तो कंफर्म है, तो इमेजिनरी कितना हुआ है? 2। ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी रियल रूट्स इसकी इक्वेशन की? x⁴ - 4x³ + 3x² + 2x - 6, इसके रियल रूट्स निकालने हैं। तो पहले तो देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो रियल ही होते हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव रूट की बात करें तो कितने पॉजिटिव होंगे? ये पॉजिटिव है, 1 चेंज, 2 चेंज, नो चेंज, 3 चेंज। 3 पॉजिटिव या फिर 1 पॉजिटिव। फिर हमें निकालना है नेगेटिव। कैसे करेंगे? x⁴ + 4x³ + 3x² - 2x - 6, कितने बनेंगे? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, 1 नेगेटिव। इमेजिनरी रूट्स, तो अगर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तो 0 इमेजिनरी। अच्छा 4th डिग्री है ना, 4 हो गए ना। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब इसका मतलब प्रॉब्लम आ रही है, अब या तो मेरे 4 रियल 2 इमेजिनरी हो गए, या फिर 2 रियल 2 इमेजिनरी, यानी कि हमें आंसर नहीं मिला। इसका मतलब हमें आंसर नहीं मिला। तो अब आंसर निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब सॉल्व करने का, लेकिन ऑप्शन तो ये होगा ना। हाँ, अगर ऑप्शन में बात बन जाए तो निकाल लो। कैसे करेगा फैक्टर? अब सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका होता है, इसमें या तो 1 डाल लो, या 2 डालो, या -1 डालो, -2। ट्रायल एंड एरर, पहला ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या? x⁴ - 4x³ + 3x² + 2x - 6, ये है मेरा f(x). अगर मैं x को 1 डालता हूं एक बार के लिए, तो ये बन सकता है 1 - 4 + 3 + 2 - 6। ये क्या बनेगा? -3 + 3, ये ओवरऑल बना -4। तो ये फैक्टर तो नहीं है, 1 इज नॉट ए फैक्टर। तो हम -1 डाल के देख लेते हैं एक बार। ये बनेगा 1 + 4 + 3 -2 - 6। क्या बन रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब -1 इज अ फैक्टर। अगर -1 है फैक्टर, इसका मतलब x -(-1) से ही डिवाइड होएगा पूरा नंबर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है x⁴ - 4x³ + 3x² + 2x + 6, this is divisible by which number? x + 1, तभी तो रूट -1 आया। समझ में आ रहा है? क्योंकि x + 1 = 0 है, तभी तो x की वैल्यू -1 आई। अब इसको सॉल्व कर, यहाँ क्या लिखूं? x³, तो क्या बन जाएगा? x⁴ - x³, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो
कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x, क्या चीज? अच्छा ये वाला, एक मिनट, x क्यूब बना प्लस x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो नीचे -5x क्यूब, ऊपर से 3x स्क्वायर निकालेंगे। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं -5x स्क्वायर, तो बनेगा -5x क्यूब, ये बनेगा -5x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये बनेगा 8x स्क्वायर, ऊपर से उतारेंगे आप 2x, प्लस 8x पुट करेंगे तो ये बनेगा 8x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, -6x -6, तो -6 पुट करेंगे तो -6x -6, ये प्लस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है जो मेरा एक्सप्रेशन है दैट कैन बी रिटन एज x+1 इंटू एक्स क्यूब -5x स्क्वायर, ठीक, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, जो मेथड यहां लगाया है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज। तो अब एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x को फैक्टराइज, फिर ट्रायल एंड एरर। मान लेते हैं अपन x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, 1 होता तो पहले ही सॉल्व हो जाता, वो तो -1 हो सकता है, -1 -5 -8 -6, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा हो सकता है +1, वैसे होगा नहीं, 1 -5 +8 -6, तो नहीं बनेगा, +1 तो बनेगा नहीं, ठीक है। फिर हम 2 पुट करते हैं, 8 -4 5 20 +16 -6, तो 26 24 नहीं बनेगा ना, 26 और 24 नहीं बनेगा। f ऑफ -2 पुट करते हैं, तो -8 4 -20 -16 -6, ये तो बनेगा नहीं। फिर 3 पुट करके देख लेते हैं, 27 -9 5 45 प्लस 8 3 24 -6, ये भी नहीं बनेगा, बन सकता है ये 24 27 कितना बने, 40 और 11 40 51, और ये बनेगा -51, बन तो रहा है ना, तो 3 बन रहा है। इसका मतलब है x -3 इज अ फैक्टर, तो अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x -6, तो किससे करेंगे, x -3 से, तो यहां बनेगा x स्क्वायर एक्स क्यूब -9x स्क्वायर माइनस प्लस कितना बन जाएगा, अच्छा 3x स्क्वायर आ गया, तो ये कट जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो -2x स्क्वायर प्लस 8x, -2x करेंगे तो -2x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x -6, तो +2 2x -6, ये माइनस, ये प्लस, कट गया। तो इसका मतलब है इस चीज को अपन लिख सकते हैं x -3 इंटू एक्स स्क्वायर -2x + 2, समझ में आ रहा है। ये जो फिर ओवरऑल इक्वेशन मेरी क्या बनी, ये वाली, x -1 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स स्क्वायर -2x + 2। अब समझ में आ रही बात, अब क्या इसमें पॉसिबिलिटी थी, जीरो इमेजिनरी पॉसिबिलिटी। अब हमें समझना है कि ये रियल देगा इमेजिनरी देगा, या तो इसको सॉल्व करके देखें या डिस्क्रिमिनेंट लगा के देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगा के देख लेते हैं। डी की वैल्यू आ रही है b² 4 -4 इंटू 1 इंटू 2, तो कितनी आ रही है वैल्यू, -8 -4, तो डी की वैल्यू लेस देन 0, यानी ये रूट कैसे देंगे, ये इमेजिनरी, तो इमेजिनरी 2 रूट आ गए, और ये कैसे रूट देंगे, रियल, तो रियल कितने आ गए 2, तो इसका आंसर है 2, यानी कौन सा वाला केस बन रहा है, ये वाला।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, याद है? एक अपना रूट -1 है और एक अपना 3 है। तो जो रियल है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और कोई तरीका नहीं है, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट चूंकि एग्जाम्पल में दिया है मेरे को कराना जरूरी था तुम्हारे लिए। एक क्वाड्रेटिक का बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्रायल एंड एरर, और कोई तरीका नहीं है। नहीं मतलब ये सॉल्व करना पड़ जाए हायर डिग्री इक्वेशन। मैं एक क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर कुछ साल पहले कैट में आया हुआ है, वो निकाल देता हूँ, मैंने कहीं करवाया था, याद नहीं आ रहा, बट दिस विल टेक केयर ऑफ योर दिस चैप्टर। नेक्स्ट 3 फर्स्ट बुक हो गई ना? हाँ? तो फिर क्या करें डीसीएस? वो कर लिया क्या? हाँ जी बोलो। 19 BCM, क्या नाम है तुम्हारा? सर इसकी पीपीटी भेज देना, यश नाम है सर। अच्छा ठीक है यश, क्या पीपीटी ना? हाँ भेज दूंगा, कोई ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब मैं चाहता हूं एक बार इसके एग्जांपल्स करो, तब तक मैं वो एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं जो कभी आया था, और इसमें तो शायद मैंने उसी तरीके का कोई क्वेश्चन लिया हुआ है, बट एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है मेरे को। हाँ बोल, बता दिया उसको, रिकॉर्डिंग चाहिए, वो चाहिए, वीडियो चाहिए, उसके नोट्स चाहिए। क्लियर है? जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, जस्ट एक बार सब लोग एग्जांपल्स देखो, मैं एक बार एक क्वेश्चन देख रहा हूं जो मैं चाहता हूं तुम्हें कराना। हाँ ठीक है। Okay, can you see this? I want you to solve this first. This is an exam question. So a student is trying to solve a maths problem from an old textbook, and what does he see? He sees an equation. Okay, he sees an equation which is partly visible. उसको क्या नजर आता है? उसको नजर आता है x की पावर 5 माइनस 11x की पावर 4, फिर कुछ 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 तो डॉटेड लाइन है, फिर आखिरी में +13 इज इक्वल टू 0 नजर आता है। If he knows that one of the root is -1, इसके कितने रूट्स बनेंगे? 5। मान लेते हैं इसके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, 5 रूट है, उसमें से एक रूट उसको पता है -1, एंड ऑल अदर रूट्स आर इंटीजर्स। बाकी सारे रूट क्या है? इंटीजर्स। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द 5th डिग्री इक्वेशन? अब बोल रहा है आप मुझे ये बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वो वैल्यू पूछ रहा है। एक तो वो 5th डिग्री इक्वेशन, ऊपर से किताब में मिटा हुआ, पूरी इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है, उसमें से एक रूट के बारे में पता है और बचे हुए रूट के स्क्वायर का सम पूछ रहा है। ये एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है। ट्राई टू थिंक एंड सॉल्व इट, देखो कैसे होएगा। ये वैसे होगा जो मैंने बताया था, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला जो है, क्योंकि रूट्स के बारे में निकालना है ना, वहां से निकालो। हाँ जी ऑनलाइन, डिड यू गेट दिस क्वेश्चन आरुल एंड यश? यस सर। ओके, तो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, टेक 5 minutes and then we will go ahead. Okay, so what do we see? मैंने आपको बताया था sum of the roots and product of the roots. अगर मैं सम निकालता हूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ -11/1 विच इज 11। और अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इंटू ओमेगा बनेगा -13। यही बात है। ऑब्वियसली मैं और क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि और तो कुछ मेरे को है ही, पता ही नहीं है। अल्फा की वैल्यू मान लेते -1 है, तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इंटू ओमेगा -13 बनेगा। ये माइनस माइनस कटेगा, यानी इन चारों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या बन सकता है? 13। चूंकि इंटीजर है, 13 इज द प्राइम नंबर, इसको तो स्प्लिट कर नहीं सकते, यानी एक रूट मेरा 13 होना ही चाहिए। तो इसका मतलब अगर एक रूट 13 है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये 13 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हो सकता है एक आंसर। आप ये भी कह सकते हो सर 13 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1, ये भी हो सकता है मेरा आंसर। आ रही बात समझ में?
आप ये भी कह सकते थे सर एक वैल्यू हो सकती थी -13 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 1, यही हो सकती थी। मतलब इसी को घुमा फिरा के होगा और तो कुछ नहीं होगा। ऑल्दो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कौन सी वैल्यू क्या होगी। समझ आ रहा है? अब हमें पता है चारों रूट का सम कितना होना चाहिए, 11। अब मान लेते हैं अपन ये वाले केस ले लेते हैं, एक तो बन गया -1, वो तो गिवन है। बचे हुए 4 ये हो सकते हैं +13 +1 +1 +1। ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है? ये कटेगा ये कटेगा, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है? 15। सर यानी सारे पॉजिटिव होंगे, ये वाला तो रूल्ड आउट है। एक तो -1 है, दूसरा ये भी हो सकता था, ये +13 +1 -1 -1, तो ये बन सकता था मेरा ओवरऑल 11। यही आंसर लग रहा है और कुछ हो नहीं सकता, यानी ये आंसर है। अगर आप बोलते हो सर इसको ट्राई करो तो ये बनता -1 -13 -1 +1 +1, तो ये कट जाता ये कट जाता ये कट जाता, हमारा बचता -13 दो। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? ये। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, एक का मैग्नीट्यूड 13 है और बाकी का 1 ही होना चाहिए। अगर सम निकालने को बोलता तो ये रूट्स बनते मेरे 11 आ जाता, क्योंकि क्या निकालना है? अल्फा का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यही निकालना है। ये बनेगा 1 प्लस कितना बना 170। दिस इज द आंसर। ये कैट क्वेश्चन है ना? अच्छा क्वेश्चन, मस्त। बता क्या नहीं आया? कुछ नहीं आया? है ना? अच्छा अच्छा दिमाग लगाना था यहाँ पे। हाँ बता भाई यश, क्या पूछ रहा है? सर ऐसे रूट सेम हो सकते हैं, 3 रूट क्या सेम हो क्या? सकते हैं, 3 रूट ऐसे सेम हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 2x + 1 = 0। इसका दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन इसके तो 2 रूट आने चाहिए थे ना, तो दोनों रूट क्या है 1 और 1, क्योंकि 2 बार 1 आ रहा है ना, ये इसका ये मतलब है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी बोलिए। क्लियर? ऑल क्लियर? क्लियर? ठीक है भाई। अरुल एंड यश, कैन वी रैप दिस अप? अभी मैं इसको यस भेज सर। दूंगा तुम्हें इसका वो। ओके सर, थैंक यू, बाय। ओके बाय, थैंक यू सो मच।